Good morning. Welcome back to another lecture of study of animal tissues. A quick recap of what we did in the last class. We started up with a topic called as connective tissue, and connective tissue में हमने loose connective tissue, dense connective tissue, है ना? हमने connective tissue में connective tissue proper और structural connective tissue कर लिया था. Right? We completed the topic called as last topic which we completed was bone. Correct? And in bone we spoke about Haversian canal system, spongy bone, compact bone. Today we have to finish up something called as blood and lymph. ठीक है? So first we will finish up blood and then we will finish up lymph. So in your last grade 8th standard में हमने blood के बारे में थोड़ा सा information हमने जाना था with respect to basic classification and basic diagram of the blood cells, different type of blood cells. When we did a topic called as circulation, correct? But in this particular module again same चीज पढ़नी है आपको, but थोड़ा सा again it is a quick recap of what we did in our last grade. अब किसी को भी याद नहीं होगा, मेरे को पता है ये सब चीजें, तो we'll have to go ahead and deal it with detail. ठीक है? So RBC blood को दो component में, so blood क्या है बेटा? Blood is a fluid connective tissue, correct? So it's a fluid connective tissue. What are the functions of the blood? What do you think are the functions of the blood? First function क्या है बेटा? Transportation, है ना? Transportation. Blood is responsible for transportation of various components. So transportation किसका हो रहा है? Transportation हो रहा है nutrients का, transportation हो रहा है hormones का, gases का, and excretory wastes. ठीक है? So first function with respect to blood is associated to transport nutrients. जो भी तुम्हारे digestive system से nutrients absorb हो रहे हैं, all of that is mixed in the blood in the process called as assimilation, and they reach the proper destinations. Technically, when you talk about destinations, primarily it goes to the liver first, and then from the liver it goes to different parts of your body. ठीक है? Hormones का नाम, hormones basically are those components trace amount में जो चाहिए which are directly released into the bloodstream. Gases again with respect to oxygen, carbon dioxide with the mediator molecule that is hemoglobin. Carbon dioxide का ऐसे freely भी move होता है in the presence of in the form of hydrogen. Sorry, my mistake. In the presence of bicarbonate ions HCO3 minus. Excretory waste is your ammonia and uric acid, ये सारे excretory waste है जो transportation के through it goes to the kidney and gets cleared. ठीक है? तो ये एक major function है. दूसरा function क्या है बेटा? Transportation हो गया. दूसरा function is with respect to immunity, है ना? All your WBCs play a major role in immunity, maintaining a certain amount of defense mechanism. ठीक है? Third function क्या है? It is associated with transport of gases. मतलब transport of gases से it is also associated with transport of O2 and CO2 majorly. ठीक है? Transport of O2 and CO2. इसके अलावा what are the other functions with respect to blood is also associated to forms lymph. ठीक है? दूसरा function क्या है? It has buffers, right? It maintains a normal pH, maintains homeostatic pH. Homeostatic pH is the optimum pH. Optimum pH of the blood is 7.2. A slight change in this pH is very dangerous for us. ठीक है? So fifth function ये हो गया. Sixth function क्या होगा? Homeostasis. It is also associated to regulate body temperature. Temperature भी ये तुम्हारा ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है टू दी वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. ठीक है? So that is with respect to the functions of the blood. Now we have to talk about the components of the blood. अब जब मैं ब्लड की बात कर रहा हूं बेटा, ब्लड
प्लाज्मा, फ्लूइड मैट्रिक्स विच इज कॉल्ड एज प्लाज्मा, जो बनाता है अप्रोक्सीमेटली 55% ऑफ योर टोटल ब्लड, ठीक है। और दूसरा है तुम्हारा ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स को ही मैं बोलूंगा ब्लड कॉर्पसल्स। नाउ देयर इज अ रीजन व्हाई आई से व्हाई आई कॉल इट एज कॉर्पसल्स, बिकॉज़ कॉर्पसल्स का मतलब है पार्टिकल, ठीक है। अब ब्लड में देयर आर अ फ्यू सेल्स व्हिच आर नॉट ट्रू सेल्स। फॉर एग्जांपल प्लेटलेट्स आर पीसेस ऑफ सेल्स। आरबीसी cannot be considered as true cell because वो सेल की कोई प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन नहीं करता, एक प्रॉपर्टी नहीं करता है, एंड आरबीसी डू नॉट हैव एनी सेल ऑर्गेनल स्पेसिफिकली एंड न्यूक्लियस। सो आरबीसी को भी हम ट्रू सेल कंसीडर नहीं करेंगे, हेंस वी यूज द वर्ड कॉर्पसल्स हियर। कूल। सो कॉर्पसल्स दे कॉन्स्टिट्यूट 45% ऑफ योर टोटल ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। सो फ्लूइड वॉल्यूम, अगर ब्लड को आपने विड्रॉ कर लिया, ये भी बात करेंगे थोड़े टाइम के बाद बात करते हैं, पहले ये फ्लोचार्ट खत्म कर लेते हैं सो दैट यू गेट अ लिटिल बिट टाइम टू राइट, ठीक है। अब प्लाज्मा में, अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं, प्लाज्मा में भी कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा देखते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इट हैज 91, इधर लिखता हूं, इट हैज 91 to 92% ऑफ वाटर। प्लाज्मा इज नथिंग बट वाटर। वाटर कितना है बेटा? 91 to 92%, ठीक है। दिस इज सॉलिड्स, इसमें सॉलिड्स होंगे, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 7 to 8% ऑन एन एवरेज, ठीक है। Then when you consider water के बारे में कभी हमको बात नहीं करना है। Solids भी further अगर मैं बात करूं तो solids also you have, इसको है ना बेटा ये 8 to 9% है, ठीक है। Solids में you have organic materials and you have inorganic materials. Organic materials and inorganic materials. Solids technically ये है बेटा, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक चॉक सॉल्यूशन कंसीडर किया है ना, तो उसमें सोल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट इज द चॉक पार्टिकल्स। सिमिलरली इन द प्लाज्मा आल्सो देयर आर सर्टेन सोल्यूट सॉलिड पार्टिकल्स, दे कैन बी ऑर्गेनिक, दे कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और दे कैन बी इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक रेफरिंग टू स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक में अगर मैं बोलूं तो इट इज पार्शियली और नॉट पार्शियली इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये अगर ये मिनरल्स जो है जो तुम्हारे ब्लड में फ्लोट हो रहे हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट द इनऑर्गेनिक पार्ट, ठीक है। सो ऑर्गेनिक पार्ट इज 7 to 8%, ठीक है, एंड दिस इज इनऑर्गेनिक पार्ट इज ऑन एन एवरेज 1%, ठीक है। सो ऑर्गेनिक पार्ट में देन फर्दर ऑर्गेनिक पार्ट में वी हैव द ऑर्गेनिक पार्ट्स आर आल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। ऑर्गेनिक पार्ट में भी 3 टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन्स है मेजरली, ठीक है। दैट इज एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजेन, ठीक है। Albumin, globulin and fibrinogen. Albumin is one of the protein which is responsible for maintaining osmotic potential of the blood, ठीक है। ब्लड को हाइपरटोनिक बना के रखता है सो दैट ब्लड में से फ्लूइड बाहर टिश्यूज में लीक आउट ना हो, ठीक है। ग्लोब्यूलिन हैज डिफरेंट फंक्शंस। ग्लोब्यूलिन का फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स, so they function as transporters and they also function as immunoglobulins, इसके टाइप्स है, ठीक है। अल्फा, बीटा, गामा, उसमें से गामा ग्लोब्यूलिन जो है दैट इज इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, ठीक है। फाइब्रिनोजन का काम क्या है? इन क्लॉटिंग। फाइब्रिनोजन इज द फैक्टर एसोसिएटेड विद ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड का क्लॉट फाइब्रिनोजन ही बनाता है। फाइब्रिनोजन is dissolvable, is in the dissolvable form. Fibrinogen gets converted into fibrin
और ये फाइब्रिन के मेश पर, ये फाइब्रिन के धागे हैं जो टेक्निकली ब्लड क्लॉट बनाते हैं. Cool. So that is with respect to plasma. Correct. Now with respect to blood cells. अब इसी फ्लो चार्ट में मैं डायग्राम नहीं दे रहा हूं बेटा, डायग्राम अलग से करेंगे, उसका फंक्शन अलग से लिखेंगे. ठीक है. So blood corpuscles में you have three major corpuscles. You have your RBCs. RBC is also called as erythrocytes. You have WBCs, also called as leukocytes, and you have blood platelets. ठीक है. RBCs, WBCs and platelets. These are the major three components of your blood corpuscles. ठीक है. अब RBC और WBC के अलग अलग टाइप है. Because WBC is your immune cell. It is associated with immunity, right? So WBC के फर्दर टाइप से बेटा WBC को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. ठीक है. WBC can be further classified or further divided under two sections, that is granulocytes, cells with granules, and agranulocytes. Granulocytes and agranulocytes. ठीक है. ग्रैन्युलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स होंगे, अग्रैन्युलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे. अकॉर्डिंग टू दैट, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स, वी हैव क्लासिफाइड देम अंडर ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स. ठीक है. ग्रैन्युलोसाइट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. Granulocytes are of three types. ठीक है. That is eosinophils, also called as acidophils, basophils, and the other one is neutrophils. ठीक है. इसके बारे में और हम डिटेल में पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू द डायग्राम्स. अभी के लिए आपकी क्लासिफिकेशन के लिए आपको लिखना है बस इतना ही. All granulocytes में there are two types. There are two types and they are monocyte and lymphocytes. ठीक है. So this is the entire classification. जितने भी components आपके blood में हैं, all that component are absolutely listed on the board. ठीक है. So blood fluid component is plasma, which is the fluid matrix and blood corpuscles. Plasma का composition ये है बेटा. ठीक है. Plasma में solids है, water है, solids में protein component है और salt component है. Protein component is 1, 2, 3, that is albumin, globulin and fibrinogen. ठीक है. WBC के टाइप से ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स विल डू इट इन डिटेल नाउ. इतना कॉपी कर लो सो दैट आई कैन erase the board. I will get out of this frame now. ठीक है. चलो तो इसको आप पॉज करके लिख सकते हो बेटा. लेट्स स्टार्ट अप विद द फर्स्ट ब्लड सेल दैट इज आरबीसीज. आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. छोटे छोटे आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है डायग्राम. डायग्राम के बाद आपको उसका फंक्शन याद करना है बस. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक फीचर में
उसको क्या बोलते था, एरिथ्रो। एरिथ्रो माने एरिथ्रो रेफर्स टू रेड, ठीक है, एरिथ्रो रेफर्स टू रेड एंड साइट रेफर्स टू सेल। ठीक है, now when you talk about the size and structure of the erythrocytes, they appear to be circular and they appear to be biconcave। मतलब आप एक पिज्जा का रोटी ले लो, पिज्जा की रोटी को ऊपर से फूंका मारो, नीचे से फूंका मारो, है ना, so you create a depression, you create a crater, so that is how your RBCs will look from a top view। So it is a flat cell which is biconcave, ठीक है, ये जो सेंट्रल ये है डिप्रेशन दिखा रहा है। अगर मैं इसको साइड व्यू से देखूं तो साइड व्यू से आपको ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, साइड व्यू से इट अपीयर्स टू बी जस्ट लाइक अ डम्बल, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज क्या है, दे आर enucleated। RBCs are enucleated, that means they have absence of nucleus, absence of nucleus, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, उनका नंबर, ऑन एन एवरेज RBCs range from 5.1 to 5.8 millions per 100 ml of blood। 100 ml को ही मैं बोल सकता हूं और डेसीलीटर, 100 ml ऑफ ब्लड और डेसीलीटर, ठीक है। उसमें से भी दिस इज द नॉर्मल रेंज, ठीक है, उसमें से भी दिस रेंज विल डिफर फ्रॉम मेल एंड फीमेल, ठीक है। फॉर मेल द वैल्यू इज 5.5 millions per million cells per 100 ml और per DL, ठीक है, और फीमेल में इट इज 4.5 millions per DL, ठीक है। इस आरबीसी का मेजर काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, करेक्ट। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन मेल वेर कंसिडर्ड, एवोल्यूशन ये बोलता है कि मेल वेर कंसिडर्ड टू बी पावर वर्कर्स, सो मेल को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी और एनर्जी इज कोरिलेटेड विद O2 एंड ग्लूकोज, करेक्ट। तो ज्यादा उनको रिक्वायरमेंट थी मेल्स को, एवोल्यूशन ये स्टोरी बोलता है, बट वेयरएज फीमेल वे कंसीडर्ड टू बी सेडेंटरी वर्कर्स, सो फीमेल डिड नॉट हैव फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ आरबीसीज विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी, राइट। सो एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से दिस इज व्हाई, दैट इज व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन दी आरबीसी लेवल्स और नंबर्स ऑफ इन मेल एंड फीमेल, ठीक है बेटा, दिस इज द नॉर्मल वैल्यू। अब आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं है, सो ये डिवाइड नहीं कर सकते, सो आरबीसीज हैव अ लाइफ स्पैन, द लाइफ स्पैन इज 120 days। एक आरबीसी बनेगा, 120 डेज तक वो रहेगा तुम्हारे ब्लड में एंड विल बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। हिमेटोपोएटिक ऑर्गन, RBCs are formed, हिमेटोपोएटिक ऑर्गन हम बात करते हैं, हिमेटोपोएटिक ऑर्गन इज बोन मैरो, ठीक है। हम WBCs के लिए लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, डज नॉट रियली मैटर। So let's write down hematopoietic organ, hematopoietic, ठीक है। Hematopoiesis is the formation of blood cells, hematopoietic organ is bone marrow। कहाँ बन रहे हैं RBC, बोन मैरो, कौन से बोन मैरो में, रेड बोन मैरो, ठीक है। Hemolytic organ, hemolytic organ is spleen। hemolytic organ मतलब जहां पे तुम्हारे RBCs डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, स्पेसिफिकली ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, सो hemolytic organ is your spleen and liver, जिसमें से लिवर थोड़ा काम करता है, लिवर के पास और दूसरे भी काम है, राइट, बट spleen does not have any particular role, so it is majorly associated with destruction of RBC, hence spleen is also called as graveyard of RBC,
mitochondria. Due to the absence of mitochondria. ठीक है? So these were the few properties with respect to RBCs which you need to remember. Correct? Increased levels of RBCs is called as polycythemia. Polycythemia. ठीक है? Decreased levels is called as erythrocytopenia. अब पीनिया वर्ड अगर आया ना तो दैट उसका मतलब ही समझ जाने का बेटा कि इट इज डिक्रीज लेवल्स. सो इंक्रीज लेवल्स को पॉलीसाइथीमिया, डिक्रीज लेवल्स को एरिथ्रोसाइटोपेनिया. ठीक है? अब पॉलीसाइथीमिया अगर मैं बोलूं डिक्रीज लेवल्स, चलो डेंजरस क्यों? क्योंकि इंसान को अनीमिया हुआ. अनीमिया रेफर्स टू डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन. डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन हुआ तो डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी भी होगी. तो बोलने का मतलब यह है बेटा कि डिक्रीज लेवल्स तो डेंजरस है आरबीसीज का, बट व्हाट अबाउट इंक्रीजिंग लेवल्स? आर इंक्रीजिंग लेवल्स डेंजरस? अगेन डिक्रीजिंग लेवल्स में अगर आरबीसीज बहुत कम रहेंगे तुम्हारे बॉडी में तो आपको चक्कर आएंगी, ब्रेथलेसनेस होगा. सो दैट इज वेरी डेंजरस कंडीशन बिकॉज adequately you will not be receiving oxygen. Your blood will not receive oxygen because oxygen carry करने वाला ही कोई नहीं, right? But what about increase? अरे increase रहा तो बहुत ऑक्सीजन मिलेगा. अगर आरबीसी इंक्रीज रही तो भी बहुत तो अच्छी बात है, बट दैट इज नॉट द ट्रू केस, राइट? अगर आरबीसी बहुत जरूरत से ज्यादा बढ़ गया, हीमोग्लोबिन भी जरूरत से ज्यादा बढ़ गया, सो अगेन इट इज डेंजरस. It will cause complications. So the next property which we write that RBCs are responsible for viscosity. अब इधर आपका लॉजिक लग जाएगा कि अगर आरबीसी बहुत ज्यादा हो गए तो आपका ब्लड और विस्कस हो जाएगा. ब्लड विल बिकम एक्सट्रीमली थिक and thick fluids are not efficiently flowing, है ना? tail will stick to the surface. Much of the oil will be wasted, but water is not. Water will freely flow, but oil will flow with a certain amount of resistance. Similarly, अगर आरबीसी जरूरत से ज्यादा तुम्हारे ब्लड में बढ़ गए तो your blood will become extremely viscous, and this viscous blood is very difficult. It is very difficult for this viscous blood to flow efficiently. तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और स्लो फ्लोइंग ब्लड की वजह से there will be formation of internal clots which can take place. Is that very clear? So RBCs are also responsible for viscosity. So don't be happy on that particular point कि polycythemia हुआ. एक disease, one of my colleague has this particular disease called as polycythemia vera. Polycythemia vera is a mild cancer of RBCs. देखो बेटा, अब RBC का तो कैंसर नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज आरबीसी डिवाइड ही नहीं करते. Because RBC do not have nucleus, right? So concept ये आता है कि RBC तो कैंसर कर ही नहीं सकते because cancer is unnecessary growth and development of the cells. So now if there is technically if there is no RBC or if RBCs are associated क्या बोल रहा था? हाँ, तो RBCs डिवाइड नहीं कर पाते हैं. RBCs अगर डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो कैंसर कैसे कॉज करेंगे? पर एक जमाना था, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, एक टाइम है व्हेन यू टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ दिस आरबीसी, एक स्टेज ऐसा भी आता है जहां पे आरबीसी के पास न्यूक्लियस था, एंड दैट स्टेज ऑफ द आरबीसी इज कॉल्ड एज एरिथ्रोब्लास्ट. ठीक है? एरिथ्रोब्लास्ट इज द न्यूक्लिएटेड फॉर्म ऑफ द आरबीसी. ठीक? तो एरिथ्रोब्लास्ट का नंबर इंक्रीज हो जाए. अगर एरिथ्रोब्लास्ट का नंबर इंक्रीज हो गया, अल्टीमेटली आरबीसी का नंबर भी इंक्रीज होगा. ठीक है? सो दैट इज अ कंडीशन. सो उसको कुछ नहीं करना पड़ता, उसको एवरी मंथ या 3 मंथ में एक बार शायद उसको कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड खुद से विड्रॉ करना पड़ता है एंड उसको बेसिन में फेंक देना पड़ता है बिकॉज हिज ब्लड इज नॉट एफिशिएंटली यूज्ड फॉर डोनेशन बिकॉज वो है ना डिजीज है. सो डिजीज अभी वैसे ड्रग्स को हम ड्रग्स बोल रहा हूँ, वैसे ब्लड को हम डोनेट भी नहीं कर सकते. तो टेक्निकली ही विल हैव टू वेस्ट हिज ब्लड, राइट? देखो कैसे कैसे डिजीजेस है, राइट? सो रिस्पांसिबल फॉर विस्कोसिटी. Very clear? Largest RBCs are seen in amphibians. In animal kingdom, largest RBCs are seen in amphibians. ठीक है? उसमें से भी there is an amphibian
called as Amphiuma and Proteus. ये salamander के type से है. Amphiuma and Proteus, they have the largest RBCs in the animal kingdom. Largest in the animal kingdom. Largest in the animal kingdom. ठीक है. Smallest RBC किसके पास है? Smallest RBCs are with mammals. अब mammals में भी elephant के पास सबसे बड़ा है और musk deer के पास सबसे छोटा है. ठीक है. In mammals also, elephants have largest in mammals. ठीक है. And musk deer has the smallest. ठीक. So these are the properties of RBCs. हमने नंबर तो ऑलरेडी लिख लिया बेटा. नंबर क्या है? 5.1 to 5.8 millions per 100 ml. ठीक है. Now let's try to write down the functions. So what are the functions of RBCs? What are the functions of RBCs? ठीक है. So RBCs, they have hemoglobin. RBCs have hemoglobin, and hemoglobin is the respiratory pigment. Hemoglobin is the respiratory pigment. मतलब technically hemoglobin is that molecule which is responsible for transport of O2 molecule. ठीक है. One hemoglobin carries 4 O2 molecules or 8 O atoms. ठीक है. So this is one particular function. So घूम फिर कर बात क्या आती है? It is associated with breathing or respiration. It is associated with respiration. ठीक है बेटा. So that is all with respect to RBCs. You need to remember. RBCs you need to remember. ठीक है. इतना कॉपी कर लो. ठीक है. So let's start. So RBCs का फंक्शन ये है. अगर RBC नहीं रहेंगे तो आपका हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा. हीमोग्लोबिन नहीं रहा तो there will be no oxygen transport which has been efficiently taking place. Very clear on that? The next type of cell which we have to talk about is WBCs or leukocytes. ल्यूको का मतलब white, साइट्स इज सेल्स. ठीक है. मेजरली एसोसिएटेड विद योर इम्यूनिटी. ठीक है. और WBC का नंबर कितना होगा ऑन एन एवरेज? नंबर नॉर्मल काउंट कितना होगा? इज 10,000 सेल्स पर 100 ml और डेसीलीटर. 10,000 सेल्स पर बस कम. ठीक है. इससे अगर ज्यादा हो गए आरबीसीज, अगर सीबीसी कराते हो, कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हो और उसमें डब्ल्यूबीसी ज्यादा है, माय मिस्टेक, आरबीसी अगर बोला रहता तो अगर डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा नंबर में दिख रहा है आपको इन दी ब्लड रिपोर्ट, सो दैट इज एन इंडिकेशन. डोंट बी हैप्पी. ठीक है. दैट इज एन इंडिकेशन दैट इंटरनली देयर इज सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन एंड द पर्सन requires medical attention with respect to treatment of that particular infection. ठीक है. आरबीसी बहुत कम हो गई इसका मतलब उसकी इम्यूनिटी वीक है. आरबीसी बहुत ज्यादा हो गई इसका आरबीसी बोल रहा हूँ, माय मिस्टेक, आई एम सो सॉरी ऑन दैट. डब्ल्यूबीसी बोल रहा हूँ बेटा, मैं डब्ल्यूबीसी बात कर रहे हैं तो मुंह से अगर आरबीसी निकल जाओगे तो प्लीज exempt that particular thing. We were talking about WBCs. अगर WBCs बहुत ज्यादा है तुम्हारे ब्लड में, it is an indication that the person has some kind of infection. अगर WBCs कम है इसका मतलब person's immunity is not fertile or immunity is not futile with respect to
utilization. ठीक है, so that is normal count of WBCs, and principally these WBCs are immune cells. Principally they are immune cells, correct? Increase in the WBC and decrease in the WBC. Increase in the WBC is called as leukocytosis. Decrease in the WBC is called as leukocytopenia. Leukocytopenia. ठीक है? So that is with respect to leukocytosis and leukocytopenia. ठीक? Leukemia. Leukemia is cancer, blood cancer जिसको मैं बोलता हूँ. So it is cancer of WBCs. क्या होगा कैंसर ऑफ WBCs में ना? WBC का कैंसर डेंजरस क्यों है या फिर ब्लड कैंसर डेंजरस क्यों? बिकॉज ब्लड कैंसर में इनिशियल डेज में या इनिशियल स्टेजेस में आपको ट्यूमर नहीं दिखेगा, ठीक है? लेटर स्टेजेस में ट्यूमर, मतलब जब तक टिश्यू, जब तक ब्लड कैंसर पूरे बॉडी में फैल चुका, दैट इज व्हेन यू सी द अपीयरेंस ऑफ ट्यूमर. ठीक? सो WBC अगर बहुत ज्यादा हो गए, व्हाट विल हैपन? ल्यूकेमिया में होता क्या है? अननेसेसरी WBCs का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. सो योर इम्यूनिटी, आप ये मत समझो कि मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो गई. तो दीज WBCs which are grown technically as a result of cancer, these WBCs are mad cells, right? So they don't know what is their function, right? So they do not understand what is your own bodies and what is foreign. मतलब उनको बिल्कुल नहीं समझ में आता. They fail to distinguish between self and non-self. ठीक है? तो सेल्फ और नॉन सेल्फ के चक्कर में they also destroy your healthy tissues of your body. So ब्लड कैंसर में मेजरली क्या हो रहा है? मेजरली होता है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स. ठीक है? There is a disease which is also called as Hodgkin's lymphoma. Hodgkin's lymphoma is the cancer of lymphocytes. And lymphocytes are your principal immune cells. ठीक है? यहाँ पे हो रहा क्या है? अननेसेसरी lymphocyte का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया, और बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से these lymphocytes they fail to distinguish between healthy cells and non-healthy cells. So ultimately result क्या होगा? Multiple organ failures, and the individual absolutely dies because of multiple organ failures. ठीक है? और एक डिसएडवांटेज ये है कि हम इसको ट्रीटमेंट में सिर्फ कीमोथेरेपी दे सकते हैं, बिकॉज ट्यूमर जब तक नहीं है तो हम रेडियोथेरेपी वगैरह एप्लीकेबल ही नहीं है इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. ठीक है? हम सिर्फ उसको रेडियोथेरेपी दे सकते हैं. सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू हॉटकिन्स लिम्फोमा, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल WBC. और अगर कुछ मेरे को पॉइंट याद आता है तो मैं आपको लिख दूंगा. आई एम डेलिबरेटली लीविंग द स्पेसेस हियर. ठीक? Let's start up with the next topic with respect to continuing WBCs. Continuing with WBCs, we'll first try to understand eosinophils. ठीक है? granulocytes बात करते हैं. Granulocytes is presence of granules. ठीक है? So let's get started with granulocytes. Under WBCs, you have the first category, that is granulocytes. So granulocytes on an average, अगर मैं WBCs को 100% कंसीडर करूं, granulocyte they make up the 68% of TLC. TLC का फुल फॉर्म क्या बेटा? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट. टोटल ल्यूकोसाइट को 100% कंसीडर किया. टोटल
कंसीडर किया, उसमें 68% इज granulocytes. So let's talk about the types of granulocytes. So under that we have the first one, that is eosinophils या acidophils. Acidophils and eosinophils, they approximately form a percentage of 1 to 2%. ठीक है, 1 to 2% का percentage with respect to eosinophils. अब eosin is a red color acidic stain. Acid loving. Fill का मतलब क्या बेटा? Loving. So why have we named these cells as acidophil? Because they are stained with acidic dyes, acidic stains, right? अब WBC ट्रांसपेरेंट सेल है. ट्रांसपेरेंट सेल होने की वजह से it is very difficult to view it under the microscope. So we use stains. But there उन लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने क्या देखा कि some cells were stained by acidic stains, some were stained by basic stains, and some were stained by both. तो इसलिए हम लोगों ने नाम दे दिया eosinophil, basophil and neutrophils. ठीक है? So eosinophils they are stained with acidic stain, principally eosin. ठीक है? डायग्राम में हम देखेंगे तो the cell appears to be amoeboid in structure. Appearance में the cell appears to be amoeboid. Characteristically इस सेल को पहचानने का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? A dumbbell shape, a bilobed dumbbell shaped nucleus. ठीक है? And it will also have acidophilic cytoplasm and acidophilic granules. ठीक है? तो कैरेक्टरिस्टिकली इधर ही हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज लिखते हैं. अमीबॉइड सेल्स, bilobed nucleus, acidophilic cytoplasm, and acidophilic granules. So ये ऐसा दिखता है तुम्हारा WBC, that is eosinophil. Now let's try to understand the functions of eosinophils. Functions क्या है? पहला चीज, so it resists infection. दूसरी फंक्शन क्या है? shows phagocytic activity. What do you mean by phagocytosis? Phagocytosis हमने 8th standard में पढ़ा है. Phagocytosis is cell eating. So it shows, it destroys or it eats up the foreign cells. ठीक है? मतलब ये जो eosinophils है, छोटे बच्चों को worm infection हो जाता है. ठीक है? So worm infection में इनका नंबर इंक्रीज होता है, या फिर एलर्जी के केसेस में इनका नंबर इंक्रीज होता है. क्यों इंक्रीज होता है? to bring down the signs of allergy. ठीक है? क्योंकि एलर्जन के साथ बाइंड हो गया, एलर्जन के साथ बाइंड होकर बुखार आता है. So they show a little bit of phagocytic activity. ठीक है? Third, the number increases. They increase in number during allergy, worm infection, etc. ठीक है? They minimize or they decrease the signs of allergy. ठीक है? Increased number of eosinophil is called as eosinophilia. मतलब अगर ब्लड रिपोर्ट्स में eosinophil का नंबर ज्यादा है, इसका इंडिकेशन ये है बेटा कि कुछ तो इस इंसान को अभी एलर्जी के सिम्टम्स
बाहर नहीं आए, बट दैट पर्सन हैज सर्टेन टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, उसको वो चीज देना बंद कर दो, उसको उस चीज की एलर्जी है, उस एलर्जी अगर एलर्जी कंटिन्यूअसली होते रहा है ना, तो इट कैन एक्चुअली डैमेज द लिवर. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इओसिनोफिलिया है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू properly take medications with respect to decreasing the eosinophils. So eosinophil का काम क्या है? It also fights the allergy, decreases the signs of allergy. ये हो गया हमारा eosinophil. The next one is basophil. Second is basophil. Approximately 0.5 to 1%. 0.5 to 1%. ठीक है. Basophils, basic, they are stained by basic dyes. Correct? Again इसको देखो कि इसका डायग्राम अगर देखना है तो again they are amoeboid cells. ठीक है. But characteristically the nucleus is S-shaped. Characteristically the nucleus is S-shaped. मैं इसको शेड नहीं कर रहा हूं, आप खुद से कर सकते हो, इतना शेडिंग काफी है मुझे लग रहा है. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिकली एस शेप, तो देखने में ऐसा लगता है कि 3 लोग. एस शेप मतलब ट्विस्टेड है, इनका न्यूक्लियस ट्विस्टेड है. आपने वो मार्बल्स देखा है, मार्बल्स के अंदर अलग अलग शेप के अलग अलग एस शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो दैट इज हाउ द डब्ल्यूबीसीज लुक एग्जैक्टली 3 डायमेंशनल. बट सिर्फ वो मार्बल एकदम स्मूथ सरफेस वाले होते हैं, दे आर नॉट स्मूथ, दे हैव अ रफ सरफेस. ठीक है. इरेगुलर सरफेस, एंड दे विल हैव बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स. They will have basophilic granules. TLC. ठीक है. अगेन क्या है, सेम जो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे लिखा है वो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आपको लिखना है. मैं कैरेक्टरिस्टिकली यहाँ पे लिखूंगा एस शेप न्यूक्लियस, और कुछ बुक्स में इसको ट्राइलोब्ड भी बोला है, तो इट इज ओके. ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस. ठीक है. दे हैव बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म. ठीक. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस. So primarily, when you talk about the functions, basophils are associated to show they are responsible for showing allergy. ये एलर्जी के साइंस दिखाता है. अगर एलर्जी के साइंस दिखे नहीं, so you will not quit or you will not stop eating those or you will not stop consuming those allergic food, right? ये एलर्जी कंपोनेंट्स, तो ये एलर्जी की साइंस दिखाता है. ठीक है. और eosinophil एलर्जी के साइंस को कम करता है. so it is responsible for showing allergy. ठीक है. पहला फंक्शन हो गया. it is responsible for the production of heparin. Heparin is anticoagulant. मतलब heparin prevents blood clotting. ठीक है. दूसरा कंपोनेंट है, दूसरा पार्ट है, 3 चीजें प्रोड्यूस करता है. द सेकेंड थिंग इज हिस्टामीन. हिस्टामीन क्या है? हिस्टामीन इज अ वैसोडाइलेटर. मतलब वेसल्स का, ब्लड वेसल्स का ल्यूमेन, ब्लड वेसल्स का डायमीटर को इंक्रीज करता है. सो इट इंक्रीजेस द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स.
ठीक. Third is serotonin. Serotonin is a vasoconstrictor. डायलेटर मतलब ल्यूमेन को डायलेट करना, कंस्ट्रिक्टर ल्यूमेन को कंस्ट्रिक्ट करना, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करना. ठीक है. वेसल की डायमीटर को डिक्रीज करना. ठीक है. So this is the function of basophils. Let's talk about neutrophils now. So these are the granulocytes जो सबसे कम अमाउंट पे प्रेजेंट है, that is basophil. ठीक है. The third cell which we talk about is neutrophils. And और इन सबसे ज्यादा होते हैं neutrophils, on an average 65% of TLC. ठीक है. Neutral. They're stained by both acidic and basic stains. Stains with acidic and basic stains. ऐसे एक सेल जो दोनों टाइप के स्टेन से स्टेन हो जाएंगे. ठीक है. अगेन डायग्राम देखोगे तो it is one of the large cell. It has an amoeboid structure. But characteristically nucleus जो है इनका, nucleus is multilobed. ठीक है. मल्टीलोब न्यूक्लियस होगा बेटा. और साथ में देयर विल बी बोथ एसिडोफिलिक एंड बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स. both acidophilic and basophilic granules. ठीक है. So nucleus is multilobed. बेटा जब मैं multilobed बोल रहा हूं, so they don't have candid number, they don't have fixed number. ठीक है. उनके पास 3 से ज्यादा होंगे न्यूक्लियस के लोब्स. So 4 लोब न्यूक्लियस होंगे, 5 लोब होंगे, 6 लोब होंगे, 7 लोब होंगे. तो कुछ सेल्स 4 लोब के होंगे, कुछ सेल्स में 6 लोब वाले न्यूक्लियस होंगे, कुछ सेल्स में 5 लोब वाले न्यूक्लियस होंगे. So technically there is no fixed number of the nucleus. And when you talk about the neutrophils, the nucleus की morphology appears because कुछ सेल्स में 4 है, कुछ सेल्स में 5 है, तो morphology अलग-अलग दिख रही है, structure अलग-अलग दिख रही है. Hence these cells are given a name called as multilobed nucleus होने की वजह से they are called as PMNL. PMNL stands for polymorphonuclear leukocyte. एक ऐसा ल्यूकोसाइट जिसकी न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी बहुत सारी है. It's very, you can simplify this particular word, polymorphonuclear leukocytes. ठीक है बेटा. PMNL. Why PMNL? Because of the variable lobes of the WBCs. Variable lobes of the nucleus. ठीक है. Functions. एक ही प्रिंसिपल फंक्शन है that they show phagocytosis. They are the only granular phagocyte. ठीक. So that is with respect to eosinophil, basophil and neutrophils. चलो कितना लिख लो बेटा.
ओके, ये पॉज कर लो और आप लिख सकते हो. Let's move on to the next cell, that is agranulocyte. Two more lectures and this particular chapter will be done. ठीक है, 2 more lectures next class में will take up muscles और nerves की बात है, neurons की बात है. So 2 more lectures, 2 or more than 2 or 1 lecture max to max. अगर 2 lecture लेना है तो 1.5 घंटे का अगर एक lecture मिल गया तो मेरा टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है. So you are free. Can you know that any particular chapter, specific chapter with respect to zoology देखते हैं अभी वो. एनिमल किंगडम है बट एनिमल किंगडम सबको नहीं है, so we cannot do it in the video because एनिमल किंगडम जो स्टेट बोर्ड वाले हैं उनको 10th स्टैंडर्ड में है, so there is no point in making them learn it right now because अभी तो उनके काम में आएगा ही नहीं. एनिमल किंगडम is one of the important chapters though. Come back. The next type of the tissue, the second type of the tissue which we talk about is agranulocytes. ठीक है, agranulocytes मतलब absence of granules. So under absence of agranulocytes will form 32% of TLC. 32% of the total leukocyte count. ठीक है. टाइप्स, let's talk about टाइप्स. अब टाइप्स में अगर मैं पहली बात करूं तो इट इज मोनोसाइट. सो मोनोसाइट अगेन स्ट्रक्चर देखोगे, मोनोसाइट का अमाउंट कितना बेटा 6% ऑफ टीएलसी. ठीक है, मोनोसाइट they have an amoeboid cell. These are the largest WBC of your body. ठीक है, of your blood. And the nucleus is characteristically bean shaped या horseshoe shaped या kidney shaped. So the nucleus is bean shaped or horseshoe shaped. ठीक है, अगेन अब ये भी चाहिए, इनको हमने eosinophil basophil के जैसे कैटेगराइज नहीं किया, but still to view this cell we have to stain them. So what they found out that these cells they have a basophilic cytoplasm. मतलब ये basic stain से stain हो गए, basophilic cytoplasm. ठीक है बेटा. Functions. पहला पॉइंट लिखेंगे हम, these are the largest WBCs. ठीक है. दूसरा उनका फंक्शन क्या है? They have phagocytic activity. They show phagocytic activity. न्यूट्रोफिल्स के जैसे ये phagocytic activity दिखा रहे हैं. ठीक है. They modify to form macrophages. Macrophages राक्षस है बेटा. ठीक है, मतलब ये these are those cells which will consume all the bacteria, which will consume the foreign antigens, foreign particles specifically. ठीक है, इतना समझ गया बेटा. ठीक है. So macrophage, न्यूट्रोफिल्स के अलावा एक पॉइंट था, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट का फंक्शन सिमिलर है, बट न्यूट्रोफिल्स आर ग्रैन्युलर एंड मोनोसाइट्स आर अग्रैन्युलर. These are the largest WBCs. This is what we need to understand with respect to monocytes. ठीक. दूसरे टाइप के सेल्स आर lymphocytes. Lymphocytes they form 26% of TLC. ठीक है. अब these are small cells, the smallest WBCs. ठीक है, और इनका न्यूक्लियस कैसा होगा? राउंड.
So again they will have basophilic cytoplasm, and they will have a spherical nucleus. फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन मैंने आपको बताया कि इट इज दी, पहला तो पॉइंट लिख लेते हैं दैट इट इज दी स्मॉलेस्ट WBC। सेकेंड फंक्शन, दे आर दी प्रिंसिपल इम्यून सेल्स। प्रिंसिपल इम्यून सेल्स, ठीक है, प्रिंसिपल इम्यून सेल्स। अब आरबीसी के ल्यूकोसाइट्स के भी दो टाइप्स है, तीनों के अलग अलग, दोनों के अलग अलग फंक्शन है। सो दो टाइप्स है, दे आर रेफर्ड टू एज बी lymphocytes and T lymphocytes। Here B for bone marrow and T for thymus। So ये वो तो तीन lymphocytes है, they form in the bone marrow because bone marrow is the erythropoietic या hematopoietic organ। सारे के सारे blood cells बनते कहाँ पे? bone marrow के अंदर, ठीक है। अब bone marrow के अंदर जो बने बट फंक्शन भी उन्होंने bone marrow में ले लिया। फॉर एग्जांपल आप पैदा यहाँ पे हुए, इंडिया में पैदा हुए और आप काम कर रहे दुबई में कर रहे हो, सो दैट इज आप फंक्शन कहाँ पे कर रहे हो? कहीं और कर रहे हो। सो टेक्निकली है ना, टेक्निकली अगर मैं इंडिया में ही पैदा हो गया, इंडिया में ही काम कर रहा हूँ, सो दैट इज वन पर्टिकुलर कंडीशन। सो हियर WBCs में, lymphocyte में, both of them are formed in the bone marrow, correct? But one matures in the bone marrow, मतलब टेक्निकली फंक्शन वो चालू करेगा in the bone marrow, matures in bone marrow, ठीक है। Whereas T lymphocyte it matures in thymus। thymus एक छोटा सा ग्लैंड है near your heart, above your heart, ठीक है। it matures in bone marrow and lymphocyte it matures in thymus and T lymphocytes, ठीक है। B lymphocytes are associated with humoral immunity। Humoral immunity is the type of immunity which is associated with antibody production, which are regulated by antibody production। मतलब B cells घूम फिरकर क्या बनाएंगे बेटा? एंटीबॉडी बनाएंगे। B cells का काम क्या है? एंटीबॉडी बनाना, ठीक है। T cells are associated with cell mediated immunity। Cell mediated immunity is the immunity with respect to cell communication। अगर मैं बाहुबली वॉर कंसीडर करूं, वैसा ही हो रहा है तुम्हारे बॉडी में। एक पैथोजन गया तो देयर इज अगेन अ बाहुबली वॉर व्हिच हैज बीन स्टार्टेड, ठीक है। सो देयर आर B lymphocytes जो क्या बनाएंगे? आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बनाएंगे, दैट इज योर एंटीबॉडीज। एंड देयर आर T lymphocyte which will contact or which will communicate with other cells to stimulate the other cells to produce this, ठीक है। सो T lymphocyte का आपने सुना रहेगा T helper cells। T helper cells are the target cell for HIV, correct? So T helper cell क्या करेगा? हेल्प करेगा। It will communicate with the B cell to produce antibody। एंटीबॉडी खुद मतलब B cell खुद से नहीं प्रोड्यूस करेगा, B cell फिर विकसित होगा, जैसे पिकाचू बनता है राइचू, है ना। विकसित होने के बाद राइचू में ज्यादा ताकत होती है। So B lymphocyte will differentiate into B plasma cells, correct? So B plasma cells और B lymphocyte और इन दोनों को कंपेयर करूं, तो B lymphocyte अगर एक सेकंड में 2 एंटीबॉडी बना रहा है तो B प्लाज्मा सेल एक सेकंड में 2000 बनाएगा। बट ये प्लाज्मा सेल में विकसित होने के लिए भी देयर इज अ स्टिमुलस व्हिच इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज गिवन बाय T helper cells। जैसे बहुत सारे सेल्स है, T helper cells है, TH cells है, अभी के लिए नहीं पढ़ना आपको, बट जस्ट फॉर द बेसिक इंफॉर्मेशन याद कर लो। TH cells जो है वो हेल्प करेंगे B cells को टू डिफरेंशिएट इनटू B plasma cells। Then there is a TC cell, that is cytotoxic T cells।
Cytotoxic T cells are associated with damaging or killing up the virus infected cells. So जो कोविड-19 चल रही है तो मेजरली कौन से सेल्स काम कर रहे हैं? TC सेल्स, ये सारे वायरस सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है. Then there is one more cell which is called as NK cell, natural killer cells. Natural killer cells और also ये डिस्ट्रॉय करेंगे किसको? कैंसर सेल्स को स्पेसिफिकली. हमारे बॉडी में कैंसर के सेल्स रोज पैदा हो रहे हैं, but it is thanks to your immunity that these cancer cells do not get a chance to grow and develop into cancer. नहीं तो देखो इतना सारा स्मोक है, इतना सारा पेस्टिसाइड वाला खाना खाते हैं, इतने सारे टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जा रहे हैं, तो कैन गेट इनटू एनी पर्टिकुलर कैंसर सेल्स रोज बन रहे हैं. बट कैंसर सेल्स जैसे ही बनते हैं दे शो अ डिफरेंट टाइप, मतलब उनकी जो सेलुलर रिसेप्टर है दे आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सेल्स. तो इम्यून सेल्स बराबर पकड़ लेते हैं, ठीक है. जैसे एक पूरी भीड़ की कार में आप बराबर टैक्सी को पहचान सकते हो. क्यों? बिकॉज टैक्सी इज पेंटेड इन येलो एंड ब्लैक, इसीलिए हम पहचानने के लिए टैक्सी यूज करते हैं. सिमिलरली आपके बाकी नॉर्मल सेल्स में कैंसर सेल्स आर आल्सो एसोसिएटेड. इट कैन बी क्लियरली सीन विद रिस्पेक्ट टू एनके सेल्स. और टीएस सेल्स है जिसको बोलते हैं सप्रेसर सेल्स. Now suppressor cells will suppress the immunity, it will decrease the immunity, ठीक है. Decrease the immunity क्यों? Because एक बार infection fight हो गया, then you do not want these WBCs to be there. Otherwise वो क्या करेंगे? तुम्हारे healthy cells को भी destroy करेंगे, right? So hence you require TS cells की उसको information चाहिए कि अगर इसकी activity को कम करना है. So TS cells, that is suppressor T cells, they come into action. So that is with respect to monocytes, that is with respect to lymphocytes. We have the last cell or last blood cell to do, that is blood platelets. ठीक है. ऑल टुगेदर हम अभी तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं. डू नॉट गेट कंफ्यूज, इसकी बात हो रही है. तीसरा टॉपिक इज ब्लड प्लेटलेट्स. ब्लड प्लेटलेट्स का नॉर्मली काउंट कितना बेटा? 2.2 लाख to 3 लाख पर 100 ml. डेंगी या फिर आपके वर्ड्स में डेंगू है ना. डेंगी में प्लेटलेट्स कम होते हैं. द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज डेंगी में प्लेटलेट्स कम होते हैं, ठीक है. क्यों कम होते हैं वो वी विल टॉक अबाउट दैट. अभी एक छोटे से रीजन में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है. अब डेंगी में कंडीशंस क्या क्या होते हैं, विल डिस्कस दैट इन अ वाइल. सो प्लेटलेट्स जो है दे आर इरेगुलरली शेप्ड. ऐसे स्पेसिफिक कोई शेप नहीं है बेटा. नाम बता रहा है प्लेटलेट्स, करेक्ट. दे आर इरेगुलर बिट्स एंड पीसेस. दे आर अगेन प्रॉपर्टीज क्या है इनका? दे आर enucleated pieces of cells, ठीक है. अब ये जो pieces of cells कैसे बने? These platelets were formed. These were formed from a megakaryocyte. एक बड़ा सा सेल. मेगा रेफर्स टू लार्ज, कैरियो मतलब बड़ा सा न्यूक्लियस, कैरी ऑन हेंस सेल. सो मेगाकैरियोसाइट एक बड़ा सा प्लेट था बेटा. एक जमाने में जब प्लेटलेट्स बन रहे थे इन दी बोन मैरो, दी प्लेटलेट्स बनने से पहले देयर वाज अ प्रीकर्सर सेल कॉल्ड एज मेगाकैरियोसाइट. And these megakaryocyte had a large nucleus. It was a large cell with large nucleus. And such a big cell with such a big nucleus is not useful. मतलब काम का नहीं है ना. तो ये बड़ा सा प्लेट था और ये बड़ा सा प्लेट डिसइंटीग्रेट हो गया. These megakaryocyte it disintegrated to form platelets. डिसइंटीग्रेट होने के बाद ये टुकड़े बन गए. करेक्ट. सो मेगाकैरियोसाइट कितना बड़ा
नहीं हो पाएगा, एंड फंक्शन नहीं कर पाएगा विद रिस्पेक्ट टू ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स का काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। तो दिस मेगाकैरियोसाइट इट डिसइंटीग्रेटेड टू फॉर्म प्लेटलेट्स। ठीक है, फंक्शन फंक्शन क्या है बेटा? फंक्शन में वी विल राइट दैट these are the principal cells of blood clotting. They help in blood clotting. ठीक है, अब डेंगू में होता क्या है? डेंगू इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रोकन बोन डिजीज। डेंगू का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है? फीवर होगा और आपकी जॉइंट्स में पेन होंगे। अब जॉइंट पेन इज एसोसिएटेड विद, because generally bone long bone के ends में bone marrow है, and bone marrow is the site of platelet formation या all the blood cell formation. ठीक है, अब क्योंकि ये viruses they will first try to destroy your WBCs. ठीक है, उसके बाद they will try and destroy your megakaryocyte platelets. तो पहले क्या होता है? प्लेटलेट्स का नंबर कम होता, मेडिकेशन लेने के बाद भी और कम होता, और कम होने के बाद धीरे धीरे प्लेटलेट्स का नंबर बढ़ता, बिकॉज मेडिकेशन ही है बेटा। डेंगू के लिए स्पेसिफिकली देयर इज नो वैक्सीन व्हिच इज बीइंग गिवन, देयर इज ओनली एंटीवायरल्स देते हैं हम, या फिर हम उसकी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, देयर इज नो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट। जनरली हम डेंगू अगर किसी को होता है तो हम पपाया एक्सट्रैक्ट देते हैं, पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट, बिकॉज इट हैज थेरेप्यूटिक कॉम्पोनेंट्स जो प्लेटलेट फॉर्मेशन को बूस्ट अप करेंगे। ठीक है, सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू योर ब्लड सेल्स एंड कंप्लीट ब्लड। ठीक है, एक छोटा सा सेक्शन है जिसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज लिम्फ। अब लिम्फ क्या है? लिम्फ इज नथिंग बट टिश्यू फ्लूइड। आप इमेजिन करो कि यू हैव अ पॉटेड प्लांट। ठीक है, यू हैव अ पॉटेड प्लांट एंड कंटिन्यूअसली यू आर पोरिंग यू वाटर दैट पर्टिकुलर प्लांट। ठीक है, और वाटर कभी कभी क्या होता है? वाटर एक्सेस हो जाता है ना, हमको लगता है कि पानी पूरा सोख जाता है, वाटर एक्सेस हो जाता है, एंड दैट एक्सेस वाटर इज कलेक्टेड डाउन। करेक्ट, एक नीचे प्लेट है। तो आप ये समझो द सॉइल इज रिजेंबलिंग योर टिश्यू। ठीक है, और आप जो पानी दे रहे हो दैट इज रिजेंबलिंग योर ब्लड। सो टिश्यू था, टिश्यू को ब्लड सप्लाई मिल रहा है। ठीक है, बट ब्लड में बहुत ज्यादा फ्लूइड है, सो अ लिटिल बिट ऑफ फ्लूइड गेट्स आउट ऑफ द ब्लड वेसल एंड इट स्प्रेड्स अराउंड द टिश्यू। जैसे जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, एक्स्ट्रा वाटर है, दैट गेट्स अक्यूमुलेटेड इन द प्लेट व्हिच इज प्रेजेंट बिलो द पॉटेड प्लांट। ठीक है, अगर मेरे पास कोई ऐसा तरीका है जिसमें मैं ये जमा किया हुआ पानी को वापस प्लांट में डाल सकूं, that is when you will understand your lymph. So technically when a tissue is continuously being supplied by blood, ठीक है, a little amount of fluid, that is plasma component, it leaks out. ठीक है, प्लाज्मा के साथ WBC भी लीक आउट होते हैं from the capillaries. So it leaks out and it spreads around the tissue. So technically your tissue is bathing in a tissue fluid, a fluid, और ये tissue fluid को हम बोलते हैं lymph. ठीक है, it is this lymph which is responsible for swelling. So technically lymph है क्या? blood का ही component, मतलब blood से ही derived, but सिर्फ difference क्या होगा? it is pale colored. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें RBCs नहीं होंगे, उसमें होंगे principally WBCs, उसमें प्लेटलेट्स भी नहीं होंगे। सो आरबीसीज और प्लेटलेट्स एब्सेंट है, बट प्रोटीन्स होंगे एंड WBCs होंगे बेटा। So did you understand? So tissue is completely bathing in a tissue fluid, and this tissue fluid is rich in, or this tissue fluid has a few RBCs and a few proteins. These tissue fluid, body के पास एक mechanism है, एक method है, या एक process है, या एक anatomical system है which is called as lymphatic system. These tissue fluids are again collected and they are drained into a vessel. ठीक है, and those lymphatic vessels they run parallel to your blood system, and यही lymphatic vessel वापस जाकर join होते हैं to your heart towards the left side of the part. तो घूम फिर कर बात ये है बेटा कि टिश्यू फ्लूइड क्या है, lymph क्या है? It is a tissue fluid which tissue fluid, lymph का different tissue fluid है, a fluid which is being drained from your blood and again मतलब technically drained from your blood and again which goes and joins the blood. तो lymph का काम क्या है? To retain the fluid in the tissue and return the fluid to the blood. So दो फंक्शन है lymph का। lymph ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है with respect
रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट था, चलो मैं हट जाता हूँ, आप कॉपी कर लेना। So that is with respect to your blood cells. ठीक है? So we finished up fluid connective tissue also. We only have muscles and neurons to be done. No, that is nervous tissue to be done. So that we might complete it in the next class. So that is all for today. Take care of yourself. God bless you. Enjoy your day.